कोयले का घोटाला इतना ज़बरदस्त है कि देश की ऐसी लूट कभी नहीं हुई और इसलिए अब सरकार को भी मानना पड़ा, या सरकार की वकील ने जो माना सुप्रीम कोर्ट में कि निश्चित चूक हुई है, आवंटन में चूक हुई है और यह अधिक पारदर्शी तरीके से होता तो अच्छा होता। तो पिछले 3 साल से जो हम कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, अपारदर्शी तरीके से हुआ है, और इसके प्रमुख कौन थे? खुद प्रधानमंत्री प्रमुख थे। और अगर प्रधानमंत्री प्रमुख है और सरकार के अटॉर्नी जनरल अगर उच्चतम न्यायालय में कहते हैं कि चूक हुई है आवंटन में, तो अब तो तकाजा बनता है कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उनके वकील ने ही उच्चतम न्यायालय को कहा कि घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सीबीआई ने अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है, लेकिन हम सीबीआई से भी पूछना चाहते हैं कि वो जो 2 एमओएस जो कोयले के राज्य मंत्री थे, 2 दसरी नारायण राव, उनके बारे में तो और भी सवाल आए हैं, लेकिन उनकी पूछताछ नहीं हो रही है। उस पूछताछ पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। सीबीआई 2 राज्य मंत्रियों की और प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंधित अधिकारियों की पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, ये भी उच्चतम न्यायालय को बताना चाहिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि इस मसले की गंभीरता को, देश की ऐसी लूट को देखते हुए उच्चतम न्यायालय भी निश्चित रूप से न्याय करेगा, और जो न्याय करते हुए इसमें कहाँ घोटाला क्यों हुआ, बिना पैसे का तो घोटाला होता नहीं, और इसलिए घोटाला क्या हुआ, घोटाला में किसका क्या सहभाग रहा है और पैसे की लेन देन कैसी हुई है और पैसे का कहाँ है, अब ये ढूंढने के लिए भी सीबीआई को आदेश देगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। टुडे द अटॉर्नी जनरल has confessed in the Supreme Court that there was something very major thing was wrong in allocation of coal blocks since 2005. This is what precisely we were saying. That is precisely what our complaint is. And therefore, when the Attorney General on behalf of the government has confided in the Supreme Court that a serious mistakes have happened, irregularities have happened, and it would have been better if there would have been a more transparent system. So now the onus is on the Prime Minister because he was heading the coal ministry. And therefore we reiterate our demand that he must now own that responsibility and resign, because when the Attorney General says he is the law officer of the government and has accepted the fault, and therefore who is responsible? None other than the minister concerned, and therefore it is the Prime Minister as a coal minister has to resign. We also are raising question about CBI. Why CBI is silent on the 2 ministers of states and officials in the PMO? Because if there is a grave loot has happened, it means that there are many partners in it. And those 2 MOS during the period of 2006 and 2009 also must be grilled, but surprisingly CBI is silent.
We expect justice from the Supreme Court, and we hope that it will definitely give direction to the CBI to go after money trail, not only restrict the inquiry up to the irregularities, but the quid pro quo, the corruption part of it, and therefore the money trail. Because coal scam between 2006 and 9, 17 billion tons of coal reserves worth 50 lakh crore rupees were given to handed over to 140 private companies on platter for free. In Congress regime, nothing comes free. How come these large stocks have come free? So that's a complete case of corruption, and therefore we demand that the Prime Minister has to take responsibility and CBI must grill the concern, and Supreme Court also will issue directives. That's our hope. There is a video which exposes Pakistan's brutality, sir. The Lance Naik Hemraj head is being used as a trophy there, and villagers are moving out with his head. This is beheading of Hemraj, the Indian soldier on Pakistan border, and today's video clip showing that how it was carried out as a trophy is absolutely shocking, against all international conventions, and it is against the very spirit of the global community, and therefore Pakistan has perpetrated crimes in the most heinous ways. Indian government must immediately tell whether the identity of the body and the head is that of Hemraj, and must tell the country what they are going to take action on this, and how they are going to tell, because Pakistan was completely in denial mode till today, and now today this is the new revelation and the actual video clip. Nobody can deny, and therefore we will wait for 24 hours to hear from the Government of India what is the course of action they have decided to do on this revelation. हमारे शूर सिपाही हेमराज का सर कटवा के पाकिस्तानी सेना ले गई थी। भारत में उस पर बहुत गुस्सा हुआ, आक्रोश हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने यह कभी नहीं स्वीकार किया कि उनके सैनिकों ने सर कटवा के ले गए हैं। और आज जो वीडियो क्लिप सामने आई है वो बेहद ही गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय सभी नियमों, कानूनों का, संकेतों का उल्लंघन करने वाली है। दूसरे देश की सेना के किसी को मार दिया जाए, उसका सर कटवा लिया जाए और उसको सरेआम घुमाएंगे कोई, ये मानवता पर अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है और इसको क्षमा नहीं की जा सकती। और इसलिए आज तक पाकिस्तान नकार रहा था। अब हम भारत सरकार से चाहते हैं कि वो तुरंत खुलासा करे कि क्या ये वीडियो क्लिप जो है वो सच है, और अगर सच है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहती है और क्या कैसे ये मुद्दे को जहाँ भी उठाने की ज़रूरत है वो उठाएगी और भारत के सम्मान को, नौजवान के सम्मान को फिर से बहाल करने के लिए क्या कदम उठाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। चुनाव से पहले एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है वो कानूनी कोशिश कर रही है ओपिनियन पोल्स को बैन करने की, जो बात शुरुआत से चल रही है, काफी साल से मामला चल रहा है। आपको लगता है सरकार डरी हुई है राजनीतिक माहौल से? बीजेपी क्या सोचती है? कांग्रेस की सरकार जनता का रुझान देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, अब कोई भी पोल करे या कोई भी किसी से बात करे, कांग्रेस तो बहुत ही लोगों के दिल से निकल गई है और इसलिए उनके हालात जो है
इसलिए वो घबराहट में, डर में इस तरह के काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुर्गे को आप भले ही ढांक दे कि वो बांग न दे, लेकिन फिर भी सूरज निकलता है, कमल खिलता है। सर, हैदराबाद में संघ की एक मीटिंग चल रही है, इसमें बीजेपी से हाँ, राजनाथ वो आप देखो। बीजेपी से भी इसमें राजनाथ जी, रामलाल जी और गडकरी साहब गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को उस बैठक में भी माना है, चिंता जाहिर की है संघ ने। नेक्स्ट, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं करनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं इस टाइम? नेक्स्ट। पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून जो लंबित है वो कांग्रेस की नाकारी सोच और उनके नाकामी का एक सबूत है। अगर काम करने वाली सरकार होती तो सबको विश्वास में लेकर इसमें से 90% से अधिक बिल पास हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस के सांसद ही आप देख रहे हो पिछले 2 सदन सेशन में वेल में आते हैं। कांग्रेस के सांसद ही सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव रोज देते हैं और इसलिए संसद बाधित हो रही है। तो अब ये दुहाई देंगे कि आखिरी सत्र में करेंगे। अब जो कुछ कानून बनाना है हम बनाएंगे, कांग्रेस को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। या see, Congress is afraid of opinion poll, or actually it is afraid of any opinion of the people, because they know very clearly that people are rejected totally, lock, stock and barrel, the Congress party, and therefore they want to prevent expression of opinion in any form, on any medium. And that is why they are trying to prohibit opinion polls and others. शकील अहमद बयान ऐसे ही देते रहेंगे फजूल के, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। देखा है देश ने कि देश में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं 90% से ज़्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। जब केंद्र में और राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता है वही दंगे होते हैं और वही दंगे कराते हैं। और इसलिए सबसे सांप्रदायिक पार्टी जो मुस्लिम लीग के साथ जिसने देश का बंटवारा किया उसके साथ जो सरकार चलाती है उससे ज़्यादा सांप्रदायिक कोई नहीं है। और इसलिए वो हताशा में कोई बयान दे उस पर हमें प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इस पर विस्तार से टिप्पणी दी है, आपके पास भी पहुंची है। ये उनकी हर एक की राय होती है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री हो रहे। कौन? नेक्स्ट पोल स्कैम में सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता था कि वो किसी भी पोल ब्लॉक को आवंटित करने के लिए वो रिकमेंड करे। यहाँ तक कि सिर्फ एप्लीकेशन जो आते थे उन्हीं एप्लीकेशंस को वो देखता था, उसके पास फिजिकल जाके चेक करने की कोई मैकेनिज्म ही नहीं था। राज्यों के अधिकारों को केंद्र ने पहले ही हथिया लिया था और बेवजह राज्यों को दोष दे रहे थे। अब राज्यों के एफिडेविट से साफ हो गया कि राज्यों का काम केवल जो भी एप्लीकेशंस आते थे वो ऊपर भेजना था। अलॉटमेंट का पूरा जिम्मा अधिकार कांग्रेस सरकार के पास था, केंद्र सरकार के पास था और जमकर उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। every day as far as Himachal Pradesh Chief Minister is concerned, and the allegations against the
Veerabhadra Singh is concerned. But Congress is once again questioning BJP with Yediyurappa joining the BJP back. What is your stand? Because Ambika Soni has asked very, very pointed questions to Mr. Jaitley and as well as your party. Our charges against Veerabhadra Singh are substantiated, and it's an open and shut case of corruption, and therefore he has to resign. But Congress is shielding him, and Congress is protecting every kind of corruption.